Hello to all. Welcome to my CBSE English world. If you are watching my video for the first time, please like, share and subscribe it. I have brought chapter 8, The Hack Driver, from Footprints Without Feet. So let's proceed to the video. Are you all fond of stories with fun, suspense, drama? This story is a mixture of all these things. The hack driver. Children, let's know the meaning of hack driver. Someone who drives a taxi for a living. So, hack means taxi and driver who drives becomes taxi driver. But here, hack is used as a horse cart, ghoda gadi. So, hack driver means the driver of horse cart. This is a story of a hack driver who lives in a village, New Mullion. He meets the narrator, that is the lawyer, who is sent with the court's order in search of Oliver Lutkins. Oliver Lutkins is ignoring the letters of the court to appear as a witness in some case. Narrator, जो कि एक लॉयर है, वो कोर्ट के ऑर्डर के साथ, डेट इज समन, न्यू मलियन विलेज जाता है. वहीं पर उसको हैक ड्राइवर मिलता है. The narrator goes in search of Oliver Lutkins, who is ignoring the letters of the court to appear as a witness in some case. How the story moves with fun, suspense, drama, this we will come to know after getting the chapter. So let's begin the detailed explanation. The story begins when the narrator is saying that after completing his graduation, he became a junior assistant clerk in a good law firm. हालांकि वो अपनी ट्रेनिंग पीरियड में होता है, फिर भी डिसअपॉइंट होता है ये सोचकर कि he was sent to serve summons. Children, I want to clear the term again. Serve summons. It means to officially send or give someone a written order to appear in a court. कोर्ट का रिटन ऑर्डर जो कि भेजा जाता है या दिया जाता है उस पर्सन को जिसको कोर्ट में अपीयर होना है रिलेटेड टू एनी केस. He did not like to serve summons. Instead, he wanted to write a legal document. तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लटकिंस इग्नोर कर रहा था पहले लेटर्स. That's why this time the narrator was sent with someone in search of Lutkins. The narrator was not happy to go as a private detective to dirty and dark streets in search of the victims. उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो एज ए प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह गंदी और डार्क स्ट्रीट्स में जाए और विक्टिम्स को पकड़कर लाए. He wanted to go away to his hometown, where he thought that he could have been a real lawyer in a moment, but did not want to do this job. One day he felt happy when he got a chance to go to a place away from city side in a village called New Mullion. एक दिन वो बहुत खुश हुआ जब उसको मौका मिला एक ऐसी जगह जाने का जो कि
सिटी साइड से थोड़ी सी दूर है और विलेज में उसको जाने का मौका मिला जो कि न्यू मलियन नाम की थी। वाई? टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस। Now he was sent as Lutkins was ignoring all the letters sent by the court, and he had to present himself as a witness in a law case. पहले जो भी लेटर्स लटकिंस को भेजे गए थे उसने उनको इग्नोर कर दिया था और उसकी ज़रूरत जो है किसी केस में थी एज अ विटनेस के तौर पर। इसलिए इस बार जो है नरेटर को भेजा जाना था कोर्ट का सामान लेके, ताकि वो ओलिवर लटकिंस को न्यू मलियन विलेज से लेकर आए और गवाह के तौर पे पेश करे। बट व्हेन ही रीच्ड देयर ही वॉज सीवियरली डिसअपॉइंटेड। वो बहुत निराश हुआ। वाई? बिकॉज ही सॉ द स्ट्रीट्स विच वर सीम्ड टू बी रिवर्स ऑफ मड। कीचड़ से सनी हुई सड़कें थी वहाँ पे। जब वो स्टेशन पहुँचा तब उसने अपने सामने सड़कें देखी तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि वो सब जो थी वो कीचड़ से सनी हुई थी। रोज ऑफ वुडन शॉप्स, लकड़ी की जो दुकानें थी वहाँ पर लाइन से बनी हुई थी, जो कि ईदर पेंटेड इन ब्राउन और नॉट एट ऑल पेंटेड। या तो वो ब्राउन कलर में पेंटेड थी और या तो बिल्कुल भी पेंटेड नहीं थी। What he pleased with was the delivery man at the station. सबसे ज़्यादा वो किसको देखकर खुश हुआ? उस डिलीवरी मैन को देखकर खुश हुआ जो स्टेशन पे उसको मिला। He was 40, red-faced, cheerful, and little bit fat. His clothes were dirty and old and had a friendly behavior. उसका बिहेवियर, उसका फ्रेंडली बिहेवियर, उसका हालांकि ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ही वॉज अ वेरी चेयरफुल एंड अ फ्रेंडली बिहेवियर मैन. दिस इज वॉट प्लीज द लॉयर. When the narrator told him about Lutkins, then the hack driver told that he had seen him here only an hour ago. Means कि 1 घंटा पहले ही मैंने उसको यहाँ पर देखा है. The hack driver told that Lutkins was not an easy fellow to catch. Means उसको पकड़ना आसान नहीं है. He was about to start up a poker game at the back of Fritz's shop. हैक ड्राइवर ने नरेटर को बोला कि शायद वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे जो है वो पोकर गेम खेलने वाला है. Now children, let me clear you the term poker game. Poker game basically is a card game in which players bet to get the highest number. Then the hack driver asked the narrator, was he in hurry to locate Lutkins? Narrator told him that he had to go back that day itself by the afternoon train. नरेटर ने बोला कि हाँ वो जल्दी में है और उसको दोपहर की ही ट्रेन से वापस भी जाना है. The narrator also told to hack driver that he wanted to keep about Lutkins secret. Means he did not want to show it to anyone that why he had come here in search of Lutkins. Then the hack driver suggested the narrator that he should take his hack and would go around with him to find Lutkins. कि वो उसकी गाड़ी पर उसके साथ बैठकर लटकिंस को ढूंढने चले. He knew most of the places where they could find him. The hack driver told him that he knew most of the places where they could find him. Means वो ऐसी बहुत सी जगह जानता है कि जहाँ पे वे लटकिंस को आसानी से ढूंढ सकते हैं. Now the hack driver started showing his cleverness by asking the questions to the lawyer, means the narrator, whether he had come here in search of Lutkins to collect money from him. क्या वो यहाँ पे लटकिंस को ढूंढने इसलिए आया है कि उसको कोई उससे पैसा लेना है. He also told to the narrator that Lutkins never pays to anybody. वो किसी को भी नहीं वापस पैसा देता है. The hack driver also told that
Lutkins had to pay back his 50 cents also. उसके भी पैसे उसने वापस देने हैं, which he owned on a poker game. He also told the narrator that Lutkins was not really bad. वो बुरा नहीं है, मगर उससे पैसे निकलवाना जो है वो बहुत ही मुश्किल का काम है, मतलब कि उससे उसके पैसे अलग करना बहुत कठिन है. He also told that if the narrator would go in such good clothes, then he would be suspicious of it. Means he would suspect him that why he would have come here. Then what he would do? He would go away from him. So he suggested him that he could help him by taking him into Fritz's shop. और वहाँ पहुँचकर तुम जो है वो मेरे पीछे खड़े रहना, मैं ही जाकर देखूंगा. The lawyer felt glad on this, thinking that now he could easily find Lutkins with the help of hack driver. He disclosed the reason also why he had come in search for Lutkins. अब जो है वो उसको लॉयर को थोड़ा थोड़ा उस पर विश्वास हो रहा था और उसको जो है वो उसने रीज़न भी बताया कि वो अब जो है वो क्यों आया है लटकिंस की तलाश में. The lawyer told that he had come to serve the summons on Lutkins as he had refused to be witness in the case, which could easily solve with his presence. मीन्स कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है केस को बहुत ही आसानी से जो है वो सेटल कर सकती है. After this, they both started their journey, thinking that they would give Brother Lutkins a little then the hack driver gave some information about him, that most people in the village call him Bill or Magnuson. His business is called William Magnuson Fancy Carting and Hacking. Then the hack driver took the narrator to Fritz's shop, as he thought that he must be there only as he was fond of playing poker games. He also told the lawyer that Lutkins was good at deceiving people. दोनों हैक ड्राइवर और जो नरेटर है दोनों फ्रिट्स की शॉप के लिए चल दिए और हैक ड्राइवर को लगता था कि वो जो है वहीं पर होगा क्योंकि वो बहुत पोकर गेम खेलता था और वो लोगों को धोखा देने में भी जो है वो बहुत जो है वो अच्छा है. Now here the narrator got little bit confused that Bill seemed to appreciate Lutkins for his dishonest means. उसकी बातों से बिल की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसके dishonest तरीकों को appreciate कर रहा है. He felt that if Bill had been a policeman, then he had caught Lutkins respectfully, and after putting him in jail, he would have regret. मीन्स कि नरेटर को ये महसूस हुआ उसकी बातों से कि अगर वो पुलिस वाला होता तो वो क्या करता, वो लटकिंस को बहुत ही सम्मान के साथ में बहुत रिस्पेक्टफुली जो है वो उसको अरेस्ट करता और उसको जेल में डालता. तो फिर उसको जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता, बहुत ज़्यादा वो पश्चाताप करता कि उसने उसको क्यों डाल दिया. इस तरीके से वो उसकी जो है वो अच्छाई कर रहा था उसके डिसऑनेस्ट मीन्स को तरीकों को. Then they both reached at Fritz's shop. Bill went into Fritz's shop and asked him about Lutkins. Fritz saw the narrator hiding behind Bill, but told him that Lutkins had been here a little while ago. दोनों फ्रिट्स की शॉप पर पहुंच गए और बिल अंदर गया और उसने पूछा कि लटकिंस के बारे में. फ्रिट्स ने नरेटर को देख लिया छिपते हुए, बट इवन देन ही टोल्ड हिम दैट लटकिंस यहाँ पर थोड़े टाइम पहले ही आया था और अब वो कहाँ गया होगा, अब वो गुस्ताफ की शॉप पर गया होगा शेव कराने. गुस्ताफ चिल्ड्रन, ही वॉज अ बार्बर. Then they both went to Gustav's barber shop.
This time also, Bill went inside first and the narrator hid behind the door. Bill asked Swede. Now, children, here Swede is the shop owner belonged to Sweden and other two customers there about Lutkins. Swede replied angrily that he had not seen him and also he did not want, as Lutkins had owned $35 and till yet not returned. बिल ने स्वीड और जो अदर दो कस्टमर्स थे वहाँ पर लटकिंस के बारे में पूछा तो शॉपकीपर ने बहुत ही एंग्रली तरीके से रिप्लाई दिया कि उसने नहीं देखा है और वो नहीं देखना चाहता है। क्यों? एज लटकिंस हैड ओन $35। उसने जो है लटकिंस ने से शॉपकीपर से जो है $35 जो है वो लिए थे और अभी तक उसने उसके लौटाए नहीं। सो the shopkeeper told Bill that if he came to know or find Lutkins, then collect the amount which he owned from him also. फिर जो शॉपकीपर ने जो है वो बिल से कहा कि अगर तुम उसको ढूंढ लो या उसका पता चल जाए तो उसको मेरा अमाउंट भी बता देना कि लौटाना है। Then from one of the customers, they came to know that Lutkins was seen walking down Main Street beside the होटल। होटल के साइड में जो गली है वहाँ पर पैदल जाते हुए लटकिंस को उसने देखा था। आफ्टर गेटिंग बैक इनटू द हैक, बिल concluded that since Lutkins had taken money on credit from गुस्ताफ बेटा वही जो शॉप ओनर था, then might be he went to Gray's shop for a shave. जब बिल और नरेटर दोनों हैक पे दोबारा चढ़ने लगे, देन बिल केम टू द कंक्लूजन, बिल एज ही वॉज वेरी क्लेवर, ही केम टू द कंक्लूजन कि लटकिंस ने गुस्ताफ से जो है उधार ले रखा है, तो इसलिए जो है वो ग्रे की दुकान पर शेव बनवाने गया हो, यहाँ ना पहुँच के वो ग्रे की शॉप पर गया हो। एंड देन दे रीच्ड देयर एट ग्रे शॉप। दे वर लेट बाय 5 minutes. As from there, they came to know that Lutkins had left for pool room. वहाँ पर उनको पता चला कि लटकिंस अभी अभी जो है वो निकला है यहाँ से पूल रूम के लिए। Now children, what is pool room? Pool room is a place to play pool. At the pool room, they both got to know that Lutkins had just bought a packet of cigarettes एंड गॉन आउट। वहाँ पर पहुँच के पूल रूम पे उन दोनों को पता चला कि लटकिंस ने केवल पैकेट ऑफ सिगरेट लिया और वहाँ से चला गया। बोथ ऑफ देम ट्राइड टू परस्यू लटकिंस बट नो रिजल्ट्स। दे कुड नॉट कैच हिम टिल 1 o'clock. दोनों ने बहुत कोशिश करी उसका पीछा करने की, उसको पकड़ने की, मगर वो नहीं पकड़ पाए उसको। But the narrator was enjoying Bill's company a lot. Bill's opinions about his neighbors, that he had hardly cared whether he had found Lutkins or not. नरेटर बिल की कंपनी को बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसके ओपिनियंस जो थे उसके नेबर्स के लिए वो बहुत अच्छे से इन्जॉय होके सुन रहा था, इसलिए उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लटकिंस मिल रहा है कि नहीं। नाउ द क्लर्क आस्क्ड बिल about having lunch. He offered to buy lunch for both from the restaurant. But Bill replied that there were only 4 and none of them was good. अब 1 बज चुका था और खाने का समय था, तो क्लर्क मीन्स जो हमारा नरेटर है उसने बिल को बोला कि चलो लंच कर लें, और उसने कहा कि हम लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट से करते हैं। मगर बिल ने क्या रिप्लाई दिया कि केवल 4 हैं यहाँ पे और वो भी अच्छे नहीं हैं। सो बिल सेड दैट ही वुड गेट फूड फ्रॉम हिज वाइफ। ही ऑल्सो सजेस्टेड टू बाय फूड पार्सल फ्रॉम हिज वाइफ एज इट वुड बी इन लेस प्राइस। बिल ने सजेस्ट करा कि वो अपनी वाइफ से जो है वो फूड पार्सल ले लेगा और उसमें जो है नरेटर को जो है वो रुपए भी कम देने पड़ेंगे, ओनली $50.
in comparison to the price which he would pay at the restaurant. और इन कंपैरिजन उसके कि जो वो प्राइस रेस्टोरेंट में देगा उससे जो है वो अगर वो अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना जो है वो उसको वो खा ले तो उसमें उसका प्राइस भी कम लगेगा और जो रेस्टोरेंट का जो मील होता है वो ऑयली भी होता है और कॉस्टली भी होता है. Bill also suggested to go up the Waits Hill, which was a nice place to view while they had their lunch. लंच करते समय जो है वो बिल ने सजेस्ट करा कि वेट हिल चलते हैं जो कि एक बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए. Now, the clerk, or to say narrator, thought that helping of Bill to him was not entirely a matter of brotherly love. He was paying him also for this. नरेटर ने सोचा बिल जो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है ये केवल एक भाईचारे के तौर पे नहीं कर रहा है, वो उसको इसके लिए पे भी कर रहा है. The narrator also told that in the end he paid Bill for 6 hours, including the lunch hour also, which was a high amount. नरेटर ने बिल को पूरे 6 आवर्स का पेमेंट दिया था जिसमें कि लंच आवर भी इंक्लूड था और वो जो था वो काफ़ी अच्छा अमाउंट उसका बन गया था. देन द नरेटर ऑल्सो इन अ सरकास्टिक वे पॉइंटेड टू हिमसेल्फ दैट द हैक ड्राइवर वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन हिम. फिर नरेटर ने अपने ऊपर सरकास्टिक वे में इस चीज़ को पॉइंट करा कि वो हैक ड्राइवर से ज़्यादा जो है वो डिसऑनेस्ट जो है, हैक ड्राइवर इतना डिसऑनेस्ट नहीं है जितना कि वो है. क्यों उसने ऐसा कहा? एज ही हैड चार्ज फ्रॉम द फर्म, और उसने जितना भी चार्जेस लगे थे वो उसने फर्म से लिए थे. बट बाय द साइड ही ऑल्सो रिग्रेटेड दैट ही शुड हैव टू पे द ड्राइवर, और इसके साथ ही उसने ये रिग्रेट भी करा कि उसको हैक ड्राइवर को रुपए खुद ही देने चाहिए थे. द नरेटर वॉज ऑल्सो हैप्पी अबाउट बींग रिफ्रेश्ड while they were sitting on the hilltop. They saw the beautiful grasslands and the streams flowing between the trees. नरेटर हिल टॉप पर बैठकर जो वहाँ का जो सीन था, जो वहाँ का व्यू था वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिफ़्रेश जो है वो फील कर रहा था. वो ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स देख रहा था, छोटी नदी देख रहा था जो पेड़ों के बीच से जो है वो बह रही थी. For him, these all things were very beautiful as he was also a villager and did not like the city life much. Bill told the narrator everything about New Mullion. He explained everything in such a way that the narrator felt that everything had happened in front of his own eyes. बिल उसको इतने अच्छे से नरेटर को या क्लर्क को जो है वो इतने अच्छे से समझा रहा था, दिखा रहा था, बता रहा था कि नरेटर को ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ उसके सामने ही हो रही है. Bill told him about the minister's wife who would sing so loudly in the church whenever she was under debt. मतलब कि बिल ने मिनिस्टर की वाइफ के बारे में बताया कि जब वो बहुत ज़्यादा जो है उधार में होती है तो वो चर्च में जो है वो खूब तेज़ जो है वो गाना गाती है. ऐसे लगता है कि जैसे शी प्रेड टू गॉड फॉर हर प्रॉब्लम्स एज शी इज़ प्रेइंग टू गॉड टू सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, जब भी वो बहुत ज़्यादा उधार में होती है. Then about some college boys who would dress in such a fancy way, and also about the lawyer's wife who always failed in her attempt to make her husband wear both the collar and the tie on the same day. तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल उसको बता रहा था, चाहे वो जो है वो मिनिस्टर की वाइफ हो या फिर कॉलेज के जो बॉयज़ हों जो फैंसी कपड़े पहन के जो है वो निकलते हैं, या फिर लॉयर की वाइफ हो जो अपने हर अटेम्प्ट में जो है वो फेल हो जाती है कि उसका हस्बैंड जो है बोथ कॉलर और टाई जो है वो एक साथ पहने. The narrator said that Bill's knowledge of his village fellows was so good that it made him love the small town of New Mullion. मतलब उसको एक एक चीज़ की ऐसी जानकारी है हर एक विलेज के मेंबर की कि उसको जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब सुनने में और वो बहुत इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था. एंड ही लव द स्मॉल टाउन ऑफ न्यू मलियन एंड ऑल्सो ही केम टू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस, whereas not much aware of the city he was living in. वो इतना नहीं जान पाया था अपने शहर के बारे में इन कंपैरिजन टू न्यू मलियन के बारे में जो उसने बिल ने उसको इतने अच्छे से बताया और एक एक चीज़ के बारे में उसको जो है वो उसकी नॉलेज में लेकर आया.
Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled a lot around the rural areas and had done a lot of jobs. And from his adventures while traveling, he came to know the philosophy. मीन्स जो बिल को ज़्यादा कॉलेज और सिटीज़ के बारे में नहीं पता था, वो केवल रूरल एरियाज़ जो गांव वगैरह में हैं वहीं पे उसने ट्रैवल करी थी और उसने बहुत सारी जॉब्स भी करी थी और जो उसके ओन एडवेंचर्स थे उसी से जो है वो उसको लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में पता चला। फ़िलॉसफी मीन्स चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उसकी ये बिलीव बन गई थी कि जो लाइफ है इज़ अ फुल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, मीन्स दैट वी शुड लिव अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। तो जब नरेटर को ये सब चीज़ों के बारे में पता चला, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में पता चला, तो उससे जो है वो नरेटर को बहुत स्ट्रेंथ मिली थी। तो इन सब चीज़ों को सुनकर जो है वो नरेटर को बहुत स्ट्रेंथ मिली थी। हैड गिवन ऑल दिस थिंग्स हैड गिवन अ स्ट्रेंथ टू द नरेटर। आफ्टर दैट they left that beautiful place and again continued the search of Oliver Lutkins, but could not find him. At last, Bill found one of the friends of Lutkins and made him admit only his guess only. बिल ने क्या करा कि उसके फ्रेंड लटकिंस का फ्रेंड जब उसको मिला तो उसने उससे फोर्सफुली एडमिट कराने की कोशिश करी कि वो बता सके कि लटकिंस कहाँ है। हालांकि फ्रेंड ने भी अपना एक गेस करा और उसने बताया कि हो सकता है लटकिंस जो है वो अपने मदर के फार्म पर गया हो। They both made out plans and moved to Lutkin's mother's farm. दोनों जो है वो फार्म पर चले गए। Then Bill informed the narrator about Lutkin's mother that she was a terror. बिल ने लटकिंस की मदर की नेचर के बारे में बताया that she was like a terror. He told him that once he took a delivery of the trunk for her and that lady treated very badly by saying that he had not taken proper care of her trunk. बिल ने नरेटर को बताया कि एक बार वो ट्रंक की डिलीवरी करने जो है इनके घर पर आया था और उस लेडी ने बहुत ही गंदा जो है वो ट्रीट करा और ये कह के कि मैंने उसके ट्रंक की सही से देखभाल नहीं करी, मीन्स दैट ही डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ ट्रंक। देन बिल डिस्क्राइब्ड हर अपीयरेंस दैट शी वॉज अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and very fast. He also told that he was sure that Oliver might have heard that somebody was after him. Therefore, he had gone to his mother's farm to get himself saved. बिल ने ये भी गेस करा कि हो सकता है ओलिवर को पता चल गया हो कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है और वो बचने के लिए अपनी मदर के फार्म पर पहुंच गया हो। बिल told the narrator to let him talk to his mother, as he would be able to bring out the truth of Oliver. बिल ने नरेटर से कहा कि वो जो है लटकिंस की मदर से वो ही बात करेगा क्योंकि हो सकता है कि वो ना जो है वो सच निकलवा पाए और बिल बहुत आसानी से जो है वो ओलिवर का सच निकलवा पाएगा उसकी। They both reached to a poor farmhouse and were faced by a huge and cheerful lady. Bill went to her bravely and asked about Lutkins. दोनों वहाँ पर पहुँच गए और उनको फेस करने के लिए जो है वो ओलिवर की मदर जो थी वो रेडी थी। शी वॉज लुकिंग लाइक अ ह्यूज एंड चेयरफुल लेडी। बिल जो है वो बहुत ब्रेवली के साथ में जो है उसके पास गया और उसने लटकिंस के बारे में पूछा। बट द मदर शाउटेड एंड सेड दैट शी डिड नॉट नो अबाउट हिम। Then Bill also changed his tone and said that we had heard a lot of nonsense. Pointing to the narrator, he said that the man belonged to the court and had legal right to search all properties of Oliver Lutkins. फिर बिल ने भी अपने टोन को थोड़ा सा चेंज करा और उसको बोला उसके ओलिवर की मदर को कि हमने जो है वो बहुत सुन ली, अब जो है वो हमारी सुनो। उसने नरेटर को पॉइंट आउट करा और कहा कि ये जो है वो कोर्ट के जो है को बिलोंग करते हैं और इनके पास में लीगल राइट है कि वो ओलिवर की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सर्च कर सकें।
The narrator felt happy as he made him feel important. नरेटर बहुत खुश हुआ कि बिल ने उसको जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो समझा. By this the woman was impressed. She went into the kitchen. They both also followed. वुमेन जो है इम्प्रेस होके किचन में गई और ये दोनों भी उसके पीछे गए. She came and was about to attack them with a hot iron taken from a stove. Then they hurriedly left the place and went outside, and she laughed at them. दोनों ने जब देखा कि वो एक हॉट आयरन रॉड जो है वो लेकर आई है स्टोव से निकाली हुई, तो दोनों जो है वो डर के बाहर चले गए और वो उन पर खूब हंसी. But however they got the chance to search the house as it was one story house. उनको मौका मिल गया घर में जो है वो तलाशी लेने का, क्योंकि वो एक सिंगल स्टोरी हाउस था. Bill went round it, peering in at all the windows. बिल ने जो है वो चक्कर लगाया पूरे घर का और जो है वो विंडोज़ में से झांक कर देखा. They searched the outhouse and the stable. उन्होंने आउटहाउस और स्टेबल भी देखा but could not find Lutkins. Now, as the narrator was getting late, therefore Bill took him to the station. दोपहर हो चुकी थी और जो है नरेटर की ट्रेन का टाइम था, इसलिए बिल ने जो है वो स्टेशन पर उनको छोड़ दिया. When the narrator was returning, there was no regression to him of not finding Lutkins. नरेटर जब वापस आ रहा था उसको कोई रिग्रेट नहीं था, कोई उसको जो है वो दुख नहीं था कि वो लटकिंस को नहीं ढूंढ पाया. Instead of this, he was still thinking about Bill and wanted to go back to New Mullion and practice law there. He was impressed by the kind and wise speakers like Fritz and Gustav. उसको जो है गुस्ताव और फ्रिट्ज जो है वो बहुत इम्प्रेसिव लगे और वो जो है वो काफ़ी उनके बिहेवियर से भी इम्प्रेस हुआ था. He imagined a life which was honest, simple and joyous, which was not experienced in the boundaries of his university or law firm. उसने एक ऑनेस्ट, सिंपल और जॉयफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करा था जो कि वो कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में या लॉ फर्म में जो है वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता था. He was so happy as he had found treasure. उसको लगा जैसे उसने खजाना ढूंढ लिया हो. Now the firm was worried about not getting of Lutkins. जब वो वापस आया उसने बताया तो जो फर्म थी वो काफ़ी वरीड हुई, क्योंकि लटकिंस का जो है वो केस में विटनेस का जो है वो बहुत ज़रूरी था होना. नाउ द फर्म वॉज वरीड ऑफ नॉट गेटिंग ऑफ लटकिंस. द नरेटर वॉज फीलिंग इंसल्टेड by being called shameful and useless. He felt as if his career was about to end. उसको सुनने को मिला कि वो बिल्कुल ही यूज़लेस है, तो उसको बहुत जो है वो अपनी इंसल्ट महसूस हुई और उसको लगा कि उसका कैरियर जो है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है. Next day he was scolded by his chief and was sent again to New Mullion with a companion who knew Lutkins. दूसरे दिन जो है वो उसको एक नए कंपेनियन के साथ में भेजा गया जो कि लटकिंस को जानता था. On reaching the station, Bill was very happy to see the narrator, and the narrator too was very happy to see Bill. The narrator pointed out Bill to his companion and told about his help. Now children, be ready for the suspense which is going to reveal. That is, the truth was revealed by his companion that the hack driver was none other than Lutkins himself. जो कंपेनियन था वो लटकिंस को जानता था और बिल ही जो था वो ओलिवर लटकिंस था. The clerk felt so bad and ashamed of being fooled by a villager. नरेटर या क्लर्क या लॉयर, उसको बहुत बुरा लगा और वो बहुत ही जो है वो शेमफुल महसूस कर रहा था कि उसको एक विलेजर ने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया. Then Oliver and his mother begged the narrator to come with them to their neighbors as they were the ones who had not seen the narrator yesterday. दोनों ओलिवर और उसकी मदर ने नरेटर से जो है वो आग्रह करा कि वो हमारे नेबर्स के घर में चले
और चाय पिए क्योंकि उसके नेबर ही जो केवल रह गए थे जिन्होंने नरेटर को कल नहीं देखा था। So children, by this we have come to the end of the chapter. I hope that you all have understood it. Go through the video once again and clear your chapter properly. Thank you.